Okay, so today's last lecture of this lecture series is from Dr. Shalini Saxena, who is Assistant Professor of Botany in Bareilly College, Bareilly. And we have been together in Bareilly College, Bareilly, and I think she is 2 or 3 or 4 years junior to me. So, for the formal welcome, I invite Dr. Nirupama Dalakoti, Assistant Professor from Government Degree College, Bajpur. Over to you, Nirupama. Thank you so much, Adarsh sir. Good morning, everyone. I welcome you all in today's session of Invited Lecture Series on Biological Science 2020. I am honored to introduce our eminent speaker for today's session, Dr. Shalini Saxena, Assistant Professor, Department of Botany, Bareilly College, Bareilly. Dr. Shalini Saxena is qualified CSIR, NET, GRF, and SRF Life Sciences. Dr. Saxena has 16 years of teaching and research experience. Dr. Shalini Saxena has published 12 research papers in various national and international journals and 2 books chapters. Dr. Shalini Saxena has attended 22 national and international seminars and conferences. Dr. Saxena is presently working on synthetic food dyes. We are very privileged to have you on this lecture series. Now I would like to request ma'am to present her lecture. Over to you, ma'am, please. Thank you, Nirupama ma'am, for your kind words. First of all, I would like to express my deep sense of gratitude to Dr. Adarsh Pandey sir, very dynamic and competent director of SRBS, who has been teacher of mine. And I would like to thanks whole organizing team of SRBS, Dr. Atul Upreti sir, Dr. Nirupama ma'am, and all the other teachers who are present over here, and all the students who are present, who are joining us. Thanks for inviting me and giving me this opportunity to present my lecture and to interact in this situation with the students. सर मैं आपके लिए और पूरी एसआरबीएस टीम के लिए कुछ 2 शब्द कहना चाहती हूँ, 2 लाइन कहना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। प्रश्नों के इस महापर्व में समाधान के वृक्ष लगाएं। प्रश्नों के इस महापर्व में समाधान के वृक्ष लगाएं। कुछ तो अंधियारा कम होगा, आओ मिलकर दीप जलाएं। ये वर्ड्स सर स्पेशली सर आपके उस एफर्ट्स के लिए है जो पूरे लॉकडाउन पीरियड में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस सिचुएशन, organizing such type of events creates a great enthusiasm as well as provides moral support to us. Thank you so much, sir. Now I would like, with these words, I would like to start my presentation. My presentation is on the topic genetic code. Start करें sir? Yes, ma'am. Okay. Sure. Start करें और slide present करना है तो slide present कर सकती हैं। स्क्रीन पे क्लिक करो तो नीचे आएगा प्रेजेंट नाउ। जी सर। उसी से कर रही हो? शुरू हो रहा है। My presentation is on the topic genetic code. See this slide. These are the seeds of Ficus bengalensis. Ficus bengalensis means बरगद के seeds है. As it is visible in the picture, the seeds are very small in size, but each seed contains the complete information, complete genetic information that such a giant tree will be formed. So these small seeds contains a complete genetic information that after germination, a giant tree will be formed. So the question arises, in what manner this genetic information existed?
And the answer is DNA and RNA. DNA and RNA are really wonder molecules. These are information molecules because they contain all the necessary important genetic information in them. Now, in what form genetic information existed? So, as we know that DNA is a polynucleotide which consists of deoxyribose sugar, phosphate, and nitrogenous bases A, T, G, and C. So the genetic information must be present in these three components, in either of the component or in all the three components: deoxyribose sugar, phosphate, and nitrogenous bases. But as we know that sugar phosphate backbone is same in all the organisms. So the information must reside in the sequence of the 4 nucleotides A, T, G, and C. A, T, G, C are the 4 letters, or you can say these are the important molecules which contain all the necessary genetic information. And there has been a collinearity between DNA nitrogenous base sequence and the nitrogenous sequence and the amino acid sequence of the protein molecule. और इसके लिए एक साइंटिस्ट है सारा भाई जिन्होंने सबसे पहले ये कंफर्म किया था कि जिस तरह से अमीनो एसिड की सीक्वेंस स्पेसिफिक होती है जिससे प्रोटीन बनता है, और उसी तरह से ATGC जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनकी भी जो सीक्वेंस है वो बहुत स्पेसिफिक है. इट मींस इन किसी भी तरह से ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं. somehow they are related, nitrogenous basis and the sequence of amino acid in protein molecule. So the 4 nitrogenous bases are 4 alphabets of DNA. As we know, there are 26 alphabets in our English vocabulary and countless words are formed from these 26 letters. Similarly, in the living system, we have 4 alphabets A, T, G, C which form countless information. And this information is in form of codons, and these codons are called, any coded message is called cryptogram. Now, first of all, I would like to explain whether the information is articulated form or it is in coded form. Suppose it is in articulated form. So articulated language contains so many symbols, so many words, grammar, and too much space, which is not visible with the DNA. So the language must be in coded form. So it is clear that it is not in articulated language, it is a coded language. And this coded language is in form of base sequence information that specifies the amino acid sequence of polypeptide, which is called genetic code. This is the simple central dogma of molecular biology. Central dogma describes how genetic information flows. Genetic information flows from DNA to protein, and it takes place in 2 steps. In the first step, transcription takes place, and by the transcription, DNA forms single-stranded mRNA. And this is the process of complementary base pairing. See this slide. This is simply complement base pairing. T का complementary A का complementary U. और इस तरह से जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन में डबल स्ट्रैंडेड DNA सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बनाता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है. ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग है कि लैंग्वेज को, एक लैंग्वेज है और उसको दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया गया है. तो DNA की लैंग्वेज भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है और उसको भी चेंज कर दिया गया है नाइट्रोजनस बेसिस की फॉर्म में mRNA में. And in the second step, this mRNA translates to language of amino acids. This is called
ट्रांसलेशन। अगर आप सिंपल ट्रांसलेशन शब्द का मतलब देखें, केवल लिटरल मीनिंग, तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना। यहाँ पर जो mRNA की लैंग्वेज है, इट इज इन फॉर्म ऑफ कोडॉन्स, और जो प्रोटीन की लैंग्वेज है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं है, इट इज समवॉट डिफरेंट। यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो नाइट्रोजनस बेसिस है, और यहाँ जो लैंग्वेज है वो अमाइनो एसिड्स है। तो ट्रांसलेशन is a process in which mRNA converts its letters into the amino acids, and these are very specific. Just like if we change this nucleotide या ribonucleotide, then the complete genetic information will change, and this reading frame will also be changed. This is again simplified form of transcription and translation. This is DNA. After transcription, RNA is formed, and this mRNA contains codons, and each codon specifies a specific amino acids, and these amino acids together form protein molecules. Now again a question arises, what is the possible size of this codon? And George Gamow was the first who postulated that a 3-letter code must be employed to encode the 20 standard amino acids used by living cells to build protein. हालांकि अब लगभग 23 अमीनो एसिड डिस्कवर हो गए हैं, लेकिन जिस टाइम ये डिस्कवरी की गई थी तब 20 अमीनो एसिड्स, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को लेकर डिस्कवर किया गया था। तो जॉर्ज गैमो वाज द फर्स्ट टू पोस्टुलेट द पॉसिबल साइज ऑफ जेनेटिक कोड। तो इतना क्लियर हो गया कि जेनेटिक कोड जो है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में प्रेजेंट है, और फिर उसके लिए डिफरेंट assumptions दिए गए। सपोज फर्स्ट assumption इज दैट जेनेटिक कोड इज सिंगलेट। जैसे हमने मान लिया कि जेनेटिक कोड सिंगलेट है, यानी कि जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं उन्हीं में जेनेटिक इंफॉर्मेशन हिडन है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो केवल 4 अमीनो एसिड कोड होंगे, 4 लेटर्स हो गए और उनसे बनने वाले 4 अमीनो एसिड्स। फिर लेकिन ये जो 4 हैं अमीनो एसिड्स, ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव 20 अमीनो एसिड्स टू बी सिंथेसाइज्ड। नाउ सेकेंडली, सपोज वी हैव अज्यूम्ड दैट जेनेटिक कोड इज डबलेट, यानी ये मान लिया गया कि जेनेटिक कोड 2 लेटर से मिलके बना है। डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए, 4 into 4 16। आप बना के देखेंगे तो टोटल 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और वो 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन केवल 16 अमीनो एसिड्स को कोड या स्पेसिफाई कर सकते हैं। दीज आर नॉट इनफ टू एक्सप्लेन how 20 amino acids are synthesized. Now thirdly, we have assumed that genetic code is triplet. Triplet means the genetic code consists of 3-letter code, AUG, GUG, like that. And in this way, total 64 possible combinations are formed, and these 64 codons are more than enough to code 20 amino acids. But this is not a mathematical calculation. Many scientific evidences are also present which clearly explain that genetic code is triplet. Not single assumption is used to ascertain that genetic code is triplet. There are so many examples, there are so many practical evidences which clearly indicate that genetic code is triplet. And the most important one is the experiment of Crick and his co-worker. Shalini, जी सर, हेलो सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, ma'am. हेलो, हाँ। तो जो क्रिक थे, उन्होंने सबसे पहले, क्रिक एंड हिज को-वर्कर एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ट्रिपलेट कोड, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक म्यूटाजेन का प्रयोग किया था T4 बैक्टीरियोफेज पर, प्रोफ्लेविन। उस प्रोफ्लेविन म्यूटाजेन की खास बात थी
कि वो कहीं भी डीएनए सीक्वेंस में किसी भी बेस पेयर को डिलीट कर सकता था या ऐड कर सकता था, और किसी भी बेस पेयर के एडिशन और डिलीशन से जो सीक्वेंस है उसका पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज होता है। अगर आप इस स्लाइड को गौर से देखें तो आप देखेंगे ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये स्पेसिफाई कर रही है एस्पार्टेट को, सी जीएसी 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 ये सब स्पेसिफाई करते हैं एस्पार्टेट को। तो जो बनने वाला प्रोटीन है इट कंसिस्ट ऑफ मैनी अमाइनो एसिड्स ऑफ aspartate. Now, when proflavin was used as a mutagen, one base was added. And when this one base was added, it changed the complete reading frame. आप देखिए पहले GAC था और जैसे ही इसमें एक बेस को ऐड किया तो इसने यहाँ से पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज कर दिया और उससे स्पेसिफाई होने वाले जो भी अमाइनो एसिड्स हैं वो भी चेंज हो गए। Secondly, two bases were added. Again, the complete reading frame has been changed. And when third base was added, a complete codon is formed. And this codon specifies leucine. And most important thing is that the reading frame was recovered. आप देखिए एस्पार्टेट और यहाँ पर ल्यूसीन बीच में ऐड हो गया है और फिर से एस्पार्टेट। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट से क्रिक और उनके कलीग्स ने ये प्रूव किया कि जो जेनेटिक कोड का साइज है वो ट्रिपलेट है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। So it is clear that genetic code is a dictionary that corresponds with the sequence of nucleotides and sequence of amino acids, and words in a dictionary are in the form of codons. And the possible combinations are total 64 codons, and out of 64 codons, 61 codons are called sense codons, which specify any amino acids. However, 3 codons are called stop codons or nonsense codons because they do not specify any amino acid. Now, the most important thing is deciphering the genetic code. What is the meaning of decipher? Decipher means interpretation. Interpretation means changing a language into a normal language. यानी जो coded language है इसको normal language में convert करना कहलाता है decipher करना। और डेसिफर जेनेटिक कोड को डेसिफर करने का काम किया था मार्शल नीरेनबर्ग एंड हेनरिक मथाई, और इन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड में एक बहुत बड़ा काम किया जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी बाद में दिया गया। इन 1961 एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ दे continued a precise and logical series of experiments to crack the genetic code. And they were among the first to characterize specific coding sequence. और इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट से जितने कोडॉन 64 कोडॉन्स थे उन सब कोडॉन्स को डीकोड किया या डेसिफर किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने ये हम आपको अभी बताते हैं। दिस इज नीरेनबर्ग। हाँ, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आपने टर्म पढ़े होंगे इन विवो एंड इन विट्रो। इन विवो मीन्स जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नेचुरल कंडीशंस में करते हैं, लिविंग सिस्टम में करते हैं तो वो कहलाता है इन विवो सिस्टम। और जब किसी भी एक्सपेरिमेंट को लैब में या टेस्ट ट्यूब में आर्टिफिशियल कंडीशंस में किया जाता है देन इट इज कॉल्ड इन विट्रो कंडीशन। तो नीरेनबर्ग एंड हिज कोवर्कर्स दे कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट देयर एक्सपेरिमेंट इन विट्रो, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ई कोलाई की सेल्स को लिसिस करके एक सेल फ्री सिस्टम बनाया। सेल फ्री सिस्टम का मतलब सेल की लिसिस कर दी और उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं दे पुट ऑल द कंपोनेंट्स इन ए टेस्ट ट्यूब व्हिच कैन सिंथेसाइज प्रोटीन। यानी प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए टीआरएनए मॉलिक्यूल्स और जितनी भी राइबोसोम्स और एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सब एंजाइम्स उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में ऐड किए। और ऐड करने के बाद ये देखिए आप इस स्लाइड से क्लियर होगा, यहाँ पर इन्होंने डीएनए
एज एंजाइम के द्वारा उसकी लिसिस कर दी, जिससे जो ई कोलाई का डीएनए है वो अपना एमआरएनए सिंथेसाइज ना कर पाए। और उसके बाद उन्होंने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया एमआरएनए और फिर डाले 20 अमाइनो एसिड्स। 20 अमाइनो एसिड्स में उन्होंने दो कैटेगरीज बनाई, हॉट अमाइनो एसिड्स एंड कोल्ड अमाइनो एसिड्स। हॉट अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड था जो कार्बन 14 से रेडियो लेबल्ड था, जबकि कोल्ड अमाइनो एसिड्स वो थे जो कि अनलेबल्ड थे। तो आपको समझ में आ गया होगा, टेस्ट ट्यूब में उन्होंने ई कोलाई का सेल फ्री एक्सट्रैक्ट लिया और जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स होते हैं उन सारे कंपोनेंट्स को ऐड किया, ई कोलाई के डीएनए को खत्म कर दिया, लिसिस कर दी, जिससे वो अपना एमआरएनए ना बना सके। एक उन्होंने सिंथेटिक एमआरएनए यूज किया। सबसे पहले उन्होंने पॉली यू एमआरएनए को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। उसके बाद उन्होंने 20 अमाइनो एसिड्स लिए। 20 अमाइनो एसिड्स में हर बार सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, हर बार एक अमाइनो एसिड को रेडियो लेबल किया और बाकी 19 को अनलेबल्ड रखा। जो रेडियो लेबल्ड अमाइनो एसिड था उसको कहा गया हॉट अमाइनो एसिड और जितने अनलेबल्ड थे उनको कहा गया कोल्ड अमाइनो एसिड। और फिर उसके बाद जब उन प्रोटीन्स को एनालाइज किया गया तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि पॉली यूरेसिल आरएनए लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ फिनाइल एलानिन, यानी जो पहला प्रोटीन बना वो बना, जो पहला अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट हुआ वो था फिनाइल एलानाइन। तो इस तरह से पहला कोड जिसे क्रैक किया गया वो था पॉली यूरेसिल और पहला अमाइनो एसिड जिसको क्रैक किया गया दैट वाज फिनाइल एलानाइन। तो इस तरह से इन्होंने धीरे धीरे करके सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया और लगभग सारे ही जितने भी जेनेटिक कोड थे 64 उन सबका क्रैक किया, डी कोड किया। ये है क्रैकिंग द कोड, एक क्लेवर एक्सपेरिमेंट। क्लेवर एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया और बहुत स्मार्टली पूरा एक आर्टिफिशियल सिस्टम तैयार करके जेनेटिक कोड को डी कोड किया। आप देखेंगे नीरेनबर्ग ने टोटल 47 अमाइनो जेनेटिक कोड जो 64 है उसमें से जो 47 है वो नीरेनबर्ग ने किए और जबकि हरगोबिंद खुराना ने इंडिपेंडेंटली 17 को डी कोड किया। तो इस तरह से पूरे 64 कोडॉन्स की डी कोडिंग की गई बाय नीरेनबर्ग एंड खुराना। और यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज रीडिंग फ्रेम, व्हाई डिड द रेड बैट ईट द फैट रेड। अब यहाँ पर आप एक भी वर्ड डिलीट कर दें या ऐड कर दें तो पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो सकता है, पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। चेंजिंग ए सिंगल लेटर कैन चेंज द कंप्लीट सेंटेंस। दिस इज द स्लाइड शोइंग रॉबर्ट हॉली। टीआरएनए पे इन्होंने अपना टीआरएनए का मॉडल दिया था, क्लोवर लीफ मॉडल, हरगोबिंद खुराना एंड मार्शल नीरेनबर्ग, और इन तीनों को ही जॉइंटली नोबेल प्राइज दिया गया इन 1968 में। और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड में एक बहुत बड़ा काम था और न्यूयॉर्क टाइम्स में एक न्यूज छपी थी उस टाइम में कि हाइड्रोजन बम और एटम बम बनाने से भी बड़ा काम बायोलॉजिस्ट ने किया है जिन्होंने लिविंग सिस्टम में जेनेटिक कोड को डी कोड किया है और ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया। As I have mentioned here, New York Times said, the science of biology has reached a new frontier leading to a great revolution far greater in its potential significance than the atomic or hydrogen bomb. तो ये इस तरह से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड में एक बहुत बड़ी खोज थी। दिस इज कंप्लीट डिक्शनरी, आप इसको बहुत आराम से बना सकते हैं, UCAG और यहाँ पर चारों लिख दिए और फिर आप इनको पूरा इस तरह से सिस्टम बना के 64 कोडॉन्स को बना सकते हैं। तो ये तो बात हो गई जेनेटिक कोड का साइज क्या है, जेनेटिक कोड किस तरह से स्पेसिफाई किए गए, कितने अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट
कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, यानी जेनेटिक कोड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. फर्स्ट, genetic code is triplet, genetic code is commaless, it is degenerate, it is non. जी सर. You have 5-7 minutes left. Okay sir. Genetic code is triplet, genetic code is commaless, degenerate, non-ambiguous, non-overlapping, open reading frame, has start signal, stop signal, universal, specific and has polarity. अब मैं बहुत जल्दी से इसको, क्योंकि सर ने कहा है केवल 5 से 6 मिनट बचे हैं, इसको मैं आपको बताती हूँ बहुत जल्दी से. फर्स्ट इज जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट. ये अभी हमने आपको पहले बता दिया. फ्रांसिस क्रिक, लेस्ली बर्नेट, ब्रेनर एंड टॉबिन, इन्होंने कंफर्म किया था एक म्यूटाजेन के द्वारा, प्रोफ्लेविन, और उस म्यूटाजेन से इन्होंने कंफर्म किया था दैट जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट. इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट और किया गया जिसमें 90 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया गया और फिर प्रोटीन को एनालाइज किया, तो उसमें 30 अमाइनो एसिड्स इनकॉर्पोरेट हुए. तो 30 × 3 = 90, यानी जब 90 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं तो अमीनो एसिड्स की जो नंबर होगा वो होगा 30. तो देयर आर सो मेनी एक्सपेरिमेंट विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट. यहाँ पे दिखाया गया है GCA, ये कोडॉन है और ये एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं. दिस इज अगेन सेम थिंग, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट कोडॉन. और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बेस सब्स्टिट्यूशन, ये आप म्यूटेशन को जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि ये जो म्यूटेशंस हैं ये बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि जेनेटिक कोड एक ट्रिपलेट कोडॉन है. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आपने पढ़ा है पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है, रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है, और बेस सब्स्टिट्यूशन में बेस जो है वो चेंज हो जाता है. तो डिफरेंट टाइप के म्यूटेशंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट कोडॉन. This is very simple. Commaless, genetic code is commaless. There is no internal punctuations. कोई भी राइबोन्यूक्लियोटाइड खाली नहीं होता है, कोई इंटरनल पंक्चुएशंस रिक्वायर्ड नहीं है. और जैसे ही एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर कंप्लीट हुआ, अगेन दूसरा न्यूक्लियोटाइड दूसरे फ्रेम में स्टार्ट हो जाता है. कोई भी इंटरनल पंक्चुएशंस और कॉमा की तरह कोई भी खाली जगह वहां पर नहीं होता है. Once the translation is started, these are read continuously. Third is genetic code is non-overlapping. Non-overlapping means one ribonucleotide is used in one codon. It is not used in the second codon. आप ये देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ और फिर दूसरा शुरू हुआ, ये कभी भी इनमें ओवरलैपिंग नहीं पाई जाती है. One ribonucleotide is used only in one codon. This is very important slide. This is degeneracy of genetic code. Degeneracy of genetic code means an amino acid can be coded by more than one codon. यानी जो degeneracy आप देख रहे हैं कि कोडॉन्स की संख्या है 64 और अमाइनो एसिड्स की संख्या है 20. This is because of degeneracy of genetic code. This is multiple coding. It is also called multiple coding. यानी कि बहुत सारे एक अमीनो एसिड को कई कोडॉन्स कोड कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडंडेंसी. इसको आप एक दूसरा शब्द भी आप जान सकते हैं, रिडंडेंसी. और ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिडंडेंसी या डीजेनरेसी ही एक्सप्लेन करता है कि जेनेटिक सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया है नेचर ने जिससे कि मिनिमम म्यूटेशंस हो. सपोज अगर किसी वजह से एक राइबोन्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाए या खत्म हो जाए, म्यूटेशन से खत्म डिलीट हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम में म्यूटेशन हो जाए. तो ये जो ससेप्टेबिलिटी को घटाता है, म्यूटेशन की ससेप्टेबिलिटी को घटाता है. तो डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आप डीजेनरेसी को याद कर सकते हैं, मल्टीपल कोडिंग इज कॉल्ड डीजेनरेसी. दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये कि यहां पर आप देखेंगे कि अभी मैं इसको दूसरी स्लाइड से एक्सप्लेन करती हूँ. ये देखिए, दिस इज डीजेनरेसी, दिस इज प्रोलाइन एंड प्रोलाइन कैन बी स्पेसिफाइड बाय दीज 4 कोडॉन्स CCU, CCC, CCA एंड CCG. ये पार्शियल भी हो सकती है और डीजेनरेसी कंप्लीट भी हो सकती है. यहाँ पर आप इसको देखिए, CCU
and it is saying I will always encode proline. यानी कि डीजेनरेसी तो पाई जाती है, मल्टीपल कोडॉन्स तो होते हैं, these are called synonyms, sorry, लेकिन ये एम्बिगुअस भी नहीं होता है, अनएम्बिगुअस है, यानी कि एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है. However, proline can be coded by multiple codons, but CCU will always code for proline. This is called non-ambiguous nature of genetic code. तो इस स्लाइड से आप दो कैरेक्टर्स को समझ सकते हैं, degeneracy and non-ambiguous nature of genetic code. Genetic code is universal. This is very important, again very important point. Genetic code, we all share common type of genetic code, but there are some exceptions जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं. माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, लेकिन जनरली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, they almost share common genetic code, and this is very important point of view for the point of origin of life. We can say that we all have originated from a common ancestor. Genetic code has polarity. The code is always read in a fixed direction, that is always in 5 to 3 direction. हमेशा जब इसको पढ़ेंगे तो 5 to 3 direction में. This is again same thing which I have told you earlier. Genetic code is non-ambiguous. Non-ambiguous means कि एक कोडॉन हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता. वन कोडॉन cannot specify more than one amino acid. Genetic code has start and stop signal. इसे बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम, जिसमें स्टार्ट सिग्नल भी है और स्टॉप सिग्नल्स भी हैं. These are called रीडिंग फ्रेम. और जब केवल स्टॉप सिग्नल ना हो, यहां तक मान ले, तो वो कहलाएगा ओपन रीडिंग फ्रेम. AUG is called start signal. It codes for methionine. However, there are some exception. GUG also serves as initiation codon. यानी अगर किसी वजह से AUG डिलीट हो जाता है या लॉस्ट है म्यूटेशन की वजह से, तो उस रेयर कंडीशन में GUG जो नॉर्मली वेलिन को कोड करता है, वो एक इनिशिएशन कोडॉन की तरह काम कर सकता है. बट इन नॉर्मल कंडीशन AUG is the start signal or initiation codon. It always codes for methionine. What are stop signals? There are 3 stop signals: UAG, UAA, and UGA. These are called stop signals or termination codon, क्योंकि इनको ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं. फिर ये क्या काम करते हैं? ये सेल को स्टिमुलेट करते हैं टू फॉर्म रिलीज फैक्टर. आप लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ रखा होगा. रिलीज फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोसेस को रोकने का काम करते हैं, या कह सकते हैं ट्रांसलेशन को कंप्लीट करने का काम करते हैं. तो ये जो सिग्नल्स हैं, ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, बट दे इंड्यूस, दे स्टिमुलेट द सेल टू फॉर्म रिलीज फैक्टर. और इन तीनों में जो पहला कोडॉन डिस्कवर किया गया था वो था UAG, और इनके कुछ ऑल्टरनेटिव नेम्स भी हैं, अंबर, ओकर एंड ओपल, जो कि नाम दिए गए हैं कलर के बेस पर. अंबर मींस ब्राउनिश येलो, ओकर मींस पेल येलो, एंड UGA for opal mean milky white. So these are stop signals which do not specify any amino acid. अब जेनेटिक कोड अगर आप पूरा पढ़ ले और एंटी कोडॉन को ना जाने तो भी पूरा नहीं माना जाएगा. एंटी कोडॉन का मतलब हुआ कि जो tRNA की जो आर्म है वहां पर जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है वो कहलाते हैं एंटी कोडॉन्स. एंटी कोडॉन में एक सबसे खास बात है कि एंटी कोडॉन्स की जो आप देखेंगे फर्स्ट बेस है और mRNA का थर्ड बेस. आप देखिए इसे 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो दिस इज थर्ड बेस, और इसको यहां से पढ़ेंगे तो ये हो गया इसका फर्स्ट बेस. इसको हमेशा इस डायरेक्शन से पढ़ा जाता है GGA. तो इसका थर्ड बेस और इसका फर्स्ट बेस, tRNA का फर्स्ट बेस, ये हमेशा बॉवेल पोजीशन पे होते हैं. बॉवेल का मतलब होता है अनस्टेबल. अनस्टेबल का यहाँ पर क्या मतलब हुआ? शालिनी, टाइम ओवर. सर बस केवल 5 मिनट, 2 मिनट लूंगी सर केवल. अब ये बॉवेल वाली उछल कूद बंद कर दो.
तो यहाँ पर मैं आपको बस इतना सा बता देती हूँ कि अगर 61 कोडॉन्स के लिए देखें तो टीआरएनए भी 61 होने चाहिए, है ना, और 3 स्टॉप सिग्नल के लिए भी 3 अलग एंटी कोडॉन्स होने चाहिए, तो टोटल 64 टीआरएनए होने चाहिए। लेकिन टीआरएनए की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो वो कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू दिस बॉबलिंग, यानी कि ये जो अनस्टेबल कंडीशन है, इसकी वजह से ये कई अलग अलग तरीके से पेयर अप कर सकती है, इसीलिए इसका थर्ड और इसका फर्स्ट बेस बॉवेल या अनस्टेबल कंडीशंस में कहलाता है। ये वही चीज दिखाई है, ये मैंने आपको इसमें बता दिया आपको। फर्स्ट 2 बेस, पहले 2 बेस स्टेबल होते हैं, केवल थर्ड बेस जो होता है वो अनस्टेबल है। हाँ, बस इसमें एक चीज और बता देती हूँ, सर ने कहा टाइम ओवर हो गया है। अगर कभी भी थर्ड पोजीशन पर इनोसिन है, जो कि डेरिवेटिव है एडेनिन का, ये एक डेरिवेटिव है एडेनिन का, अगर ये थर्ड पोजीशन पर प्रेजेंट है तो ये यू, सी और ए तीनों से पेयर अप कर सकता है। यानी कि बॉबलिंग की वजह से ही पॉसिबल है कि 61 डिफरेंट टीआरएनए की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम टीआरएनए से पूरा काम चल जाता है। दिस इज सिंपली डिफरेंस बिटवीन कोडॉन एंड एंटीकोडॉन। थैंक यू सो मच। This is all about of my presentation. Thank you so much, ma'am, for such a nice and informative lecture. The presentation is full of knowledge and I hope it will be very useful for students. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, Shalini ma'am. She's my old senior colleague from Bareilly College, Bareilly, and I'm really glad to see you here, ma'am. And Thank it was you, a very sir. nice and informative lecture, and especially the experiments you described were very important. These were the basis actually of initial findings of molecular biology. Very nice lecture, ma'am. Very informative. Sir, you And, are also a very we good have- botanist. Thank you. I have learned a lot from your lecture. Thank you, ma'am. Thank you. अरे ये Thank zoology के We हैं, have with us zoology के हैं। principal Kamala Chanyal, principal GDC Bajpur. And but before handing over to her, I would like Dr. Adarsh Pandey to present a small वो करो, share token करो। of our appreciation to Dr. Nirupama Dalakoti. Over to you, Dr. Adarsh Pandey. Thank you, sir. Undoubtedly, it was a nice presentation by Dr. Shalini, and society is very much happy with the effort of Dr. Nirupama Dalakoti ma'am, who has been co-convener, co-organizing secretary, co-reporter of all the lecture series being held by the SRBS in association with Christ Church College or is from Government Degree College, Bajpur. So society is acknowledging Dr. Nirupama Dalakoti by presenting a certificate of appreciation from Society for Research in Biological Science. Thank you so much, Dr. Nirupama Dalakoti ma'am, and I promise you, I assure you that in the future, the society will do definitely something for you. And now, for now, the society is presenting a certificate of appreciation to you. Kindly accept this honor from the society and keep in touch for all remaining lecture series. Thank you so much. God bless you. Kudos to you. Over to you, Dr. Prati. Thank you so much, sir, for your golden I would words. like to listen. I am would very like to listen happy. to Thank you, sir. Thank you so much. most welcome. Okay. Sir, Now, आप- I would like to call upon our principal for the valedictory speech. Over to Sure. you, Dr. Kamala Chanyal, principal of Government PG College, Bajpur. जी समस्त सम्मानित सदस्य, आप सब जानते हैं लाइफ साइंस या जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की एक बृहद शाखा है। इसे परिभाषित करना एक कठिन कार्य है। विज्ञान की इस शाखा में तकनीकी विकास के कारण पिछली 1 सदी से भी कम समय में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं। शरीर, जैविक क्रियाओं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जहां कई पुराने सिद्धांत ध्वस्त हुए हैं, वहां अभी भी बहुत से रहस्य व पहेलियां अनसुलझी ही हैं। सूचनाओं और प्रयोगों को हर खिड़की
एक नए अंतरिक्ष की ओर खुलती है। इस तेजी से बदलते हुए विषय और मानव जीवन पर इसके प्रभावों का एक उदाहरण हमें कोरोना संक्रमण काल में देखने को मिलता है, जहां पूरा विश्व जीव विज्ञानियों की ओर आशा से देख रहा है। इस संक्रमण काल में भी शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं हेतु शिक्षा के नए माध्यमों का प्रयोग एक बहुत ही शुभ संकेत है। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण के क्षेत्र में हो रहे प्रयोगों में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर एवं SRBS द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित व्याख्यान मालाएं अत्यंत सफल आयोजन सिद्ध हुए हैं। मैं उन सभी शिक्षाविदों को हृदय से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ जिन्होंने इस व्याख्यान माला में अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए और उनको भी जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया। मैं डॉक्टर आदर्श पांडे, डॉक्टर अतुल उप्रेती, डॉक्टर जया कांडपाल और डॉक्टर निरुपमा डालाकोटी को उनके प्रयासों एवं श्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी ऐसे ही और नए प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन आप लोगों के द्वारा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम फॉर अ काइंड वर्ड्स। और थैंक यू सो मच मैम। कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ गए हैं।